Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the second part of the chapter, The Last Leaf of 8th Standard. So let's begin. Okay, before beginning the second part, let us first revise about the first part, what was there. Okay, so in first part, we saw that there were two girls named Johnsy and Sue. Both of them were good friends, but Johnsy was not that much strong, and because of that, she fell ill and she was caught with pneumonia. When she was ill, she used to think that she may not live for many days, and that the reason behind it was that she used to watch an ivy vine just outside her window, and it was the autumn season. That's why the leaves were falling, and she thought that the means when that last leaf will fall, that time she may also die. Now, when Sue heard about this thing, she reacted in the manner like, "How can you think so?" And she tried to explain her that it is not like that. Doctor told that you will be okay soon. But John C. did not accept this thing. She told that no, she will go along with the last leaf. Then, just this Sue, have in order to have the help of Behrman, she called him. Behrman was an old person, old man. He was also artist, but he was not able to earn too much because he was not that much good artist, and he always used to wait for the time when he will paint a masterpiece. He was just waiting for a good time so that he can make his masterpiece. So when Sue told everything to Behrman, he also told that these are idiotic things, idiotic imaginations, and she should not think like that. Now let us continue the story. शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड सू ने कहा कि वो बहुत बीमार है और बहुत कमज़ोर है. द फीवर हैड मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज, और फीवर के कारण, उसकी बीमारी के कारण वो अपने पूरी तरीके से वो इमेजिनेशंस में गुम हो गई है. फैंसीज मीन्स आई टोल्ड यू इमेजिनेशंस. दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी. सम डे आई विल पेंट अ मास्टरपीस एंड विल शैल ऑल गो अवे. यस सेड बेरमैन. बेरमैन ने कहा कि ये प्लेस अच्छी नहीं है मिस जॉन्सी के लिए. एक दिन किसी दिन मैं मास्टरपीस पेंट करूँगा और हम सब यहाँ से चले जाएंगे. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स. ये दोनों जब ऊपर गए तब जॉन्सी सो रही थी. स्यू शोड बेरमैन द आइवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो. सू ने जो आइवी वाइन जॉन्सी देख रही थी दिनों से वो दिखाई बेरमैन को. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन बिगिन देयर वर्क. उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा एक मोमेंट के लिए और फिर बिना कुछ बोले अपने काम में लग गए. आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली. और बाहर एक ठंडी सी बारिश हो रही थी. ठंडी इन द सेंस बारिश हो रही थी और ठंडक भी थी. मिंकल विद स्नो, और बारिश के साथ स्नोफॉल भी हो रहा था. स्यू क्लोज द विंडो. सू ने विंडो क्लोज कर दी. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन स्यू woke up, she found that Chauncey was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग थी उस टाइम उसने स्यू ने देखा कि जो जॉन्सी वो अभी तक उस विंडो को जो क्लोज है, जो बंद की हुई है लास्ट नाइट जॉन्सी ने स्यू ने जिसको बंद कर दिया था, तो जॉन्सी अभी तक उस विंडो को देख रही थी. वो भी उसकी आइज़ जो थी वो डल थी, वाइड ओपन थी. ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड. स्यू वेट. उसने कहा जॉन्सी ने कि विंडो ओपन करो, मुझे देखना है बाहर. उसने ऑर्डर किया और स्यू ने उसको ऑबे किया. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. What was Chauncey doing when Sue and Behrman went upstairs? What was Chauncey doing when Sue and Behrman went upstairs? जब Sue और Behrman ऊपर गए उसके घर पे तब Chauncey क्या कर रही थी? ओके, आगे बढ़ते हैं हम. But lo, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall the one ivy leaf. But हुआ क्या? इतनी बारिश हुई रात को, इतना फियर्स मीन्स वायलेंट विंड थी, इतनी भयंकर वाली विंड थी जो रात भर चल रही थी, फिर भी एक आइवी लीफ वहीं पर अभी भी थी. उस वाइन पर अभी भी वो लीफ थी. इट वॉज द लास्ट ऑफ द वाइन, और वो लीफ लास्ट थी वहाँ पे. स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, और अभी तक वो अपने स्टेम के पास का जो कलर था वो डार्क ग्रीन था. बट विद इट्स एजेस टिंटेड विद येलो. लेकिन उसके जो एजेस थे, उसके जो कॉर्नर्स थे वो थोड़े से येलोइश थे. टिंटेड मीन्स कलर्ड.
तो वो येलो कलर के थे, येलोइश थे. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 फीट अबव द ग्राउंड. और ग्राउंड से अराउंड 20 फीट ऊपर वो ब्रांच से अभी तक हैंग हुई थी. हैंग मीन्स उस पर लटकी हुई थी, लगी हुई थी. इट इज़ लास्ट वन, इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा कि ये लास्ट है. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. मुझे लगा कि शायद ये रात को ज़रूर गिर जाएगी. आई हर्ड द विंड. मैंने सुना था कितनी तेज़ हवा चल रही थी. इट विल फॉल टुडे. कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तो ये गिरी जाएगी. एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम. और मैं भी इसके साथ ही मर जाऊँगी. जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन. जॉन्सी अपनी जो लास्ट जर्नी है उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, जो हमेशा इंसान अकेले ही करता है. कि हम जानते हैं कि जो लास्ट जर्नी होती है मीन्स आफ्टर डेथ एवरी वन इज सिंगल. नो वन कैन सपोर्ट यू, नो वन कैन बी विद यू. यू हैव टू गो अलोन, राइट. वी हैव टू गो अलोन ब्रदर. तो वो अपनी इस लास्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही थी. द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर. और उसके अंदर ये जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. द टाइज ऑफ शूज फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकेम लूज वन बाय वन. और जो उसकी टाइज थी, टाइज मीन्स आप कह सकते हैं कि जो उसका रिलेशन था स्यू के साथ, उसकी फ्रेंडशिप और दूसरी चीज़ों से अर्थ पे, वो सब लूज हो रहा था वन बाय वन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट डिड जॉन्सी नोटिस द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग. अभी जो इसने नोटिस किया है ये सब नेक्स्ट मॉर्निंग का है. तो द क्वेश्चन इज व्हाट डिड जॉन्सी नोटिस द नेक्स्ट मॉर्निंग. नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या नोटिस किया जब उसने ऑर्डर दिया था उस सूप को, उसके बाद उसने क्या नोटिस किया. आगे बढ़ते हैं हम. द डे वेंट अवे बट इवन थ्रू द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन एवी लीफ क्लिंचिंग टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल. और दिन पूरा चला गया था और जो शाम थोड़ा सा अंधेरा होता है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जब सनसेट होने वाला होता है उस टाइम ट्विलाइट होता है. लाइक लाइट भी होती है और डार्कनेस भी होता है, उस टाइम को आप ट्विलाइट कह सकते हैं. तो ट्विलाइट का टाइम आ गया था, मीन्स इट वॉज अबाउट टू कम, इवनिंग वॉज अबाउट टू कम, शाम आने ही वाली थी. दे कुड सी द लोन आइवी लीफ क्लिंजिंग. क्लिंजिंग का मतलब होता है अटैच्ड टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल. उन्होंने देखा कि अभी तक वो जो आइवी लीफ है वो अभी तक वहीं पर अटैच्ड है. एट नाइट, रात के टाइम पे, अगेन द विंड रेज एंड द रेन पोर्ड. फिर से जो विंड थी वो स्ट्रांगली ब्लो होने लगी और बारिश भी हुई. इट वॉज रेनिंग ऑल्सो. नेक्स्ट डे व्हेन इट वॉज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो. नेक्स्ट डे जब थोड़ी सी रोशनी अच्छी थी, लाइट अच्छी थी, उस टाइम जॉन्सी ने फिर सू को बोला कि विंडो ओपन करो. द ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर. और वो लीफ अभी तक वहीं थी. जॉन्सी ली फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट. जॉन्सी का बहुत देर तक उसको देखती रही. वो ऐसे कैसी अपनी प्लेस पे थी और उसको कंटिन्यूसली देखती रही. देन शी कॉल्ड सू. फिर उसने सू को बुलाया. सू डियर सेड शी सेड आई हैव बीन अ बैड गर्ल. मैं एक बहुत बुरी गर्ल थी. समथिंग हैज़ मेड अ लास्ट लीव स्टे देयर टू शो मी हाउ विकेड आई वॉज. उसने कहा कि किसी चीज़ ने तो उस लास्ट लीव को अभी तक वहीं पर रख रखा है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी विकेड थी, मैं कितनी बुरी थी. इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. और ये बहुत बुरा सिन है. सिन मीन्स आप हिंदी में कह सकते हैं पाप. तो ये सिन होता है, अगर आप मरना चाहते हैं तो एक तरीके का सिन है. आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रोथ एंड मिल्क दैट सू ब्रॉट हर. और उसके बाद ये कहने के बाद वो रेडी थी, जो सूप और मिल्क सू लाई थी उसके लिए, वो लेने के लिए रेडी थी. शी वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड. अब वो बैठना चाहती थी. अभी तक वो हमेशा लेटी रहती थी, अब वो बैठना चाहती थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट डिड जॉन्सी से टू सू आफ्टर फाइंडिंग द लास्ट लीफ स्टिल देयर. जब उसने देखा कि लास्ट लीफ अभी तक वहीं पर है, तब जॉन्सी ने सू को क्या कहा. Repeating the question, what did Johnsy say to Sue after finding the last leaf still there? आगे बढ़ते हैं. Someday I hope to paint the Bay of Naples. Bay of Naples मीन्स आप कह सकते हैं एक आइलैंड, एक कोस्ट लेन है, वेस्टर्न मीन्स वेस्ट में है ये. तो उसने कहा कि मैं इसको किसी दिन पेंट करूँगी. मिस्टर बैरमैन डाउनस्टेयर्स वॉज नाउ इल विद निमोनिया. लेकिन अब मिस्टर बैरमैन बीमार हो गए थे निमोनिया के कारण. द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम इन वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज़. और जो स्वीपर था, स्वीपर मीन्स यू मस्ट बी नोइंग, जो साफ़ सफाई करते हैं, लाइक झाड़ू लगाते हैं. ओके, तो स्वीपर्स थे. तो एक स्वीपर था, उसने देखा कि जो मिस्टर बैरमैन है वो
सर पे लेटे हुए हैं और कोई उनके पास नहीं है, हेल्पलेस है, अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं वो। उनके जो कपड़े हैं वो पूरी तरह गीले हैं, उनके शूज़ भी गीले हैं। He also found some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. और यहाँ तक कि उसने देखा कि कुछ ब्रशेज़ हैं जो स्कैटर्ड मीन्स आप कह सकते हैं कि जो जैसे अगर आपने कभी पेंटिंग ब्रश देखा होगा तो अगर न्यू ब्रश होता है तो एकदम आप कह सकते हैं स्ट्रेट होता है, एकदम स्मूथ होता है, और जो यूज ब्रश होता है थोड़ा सा रफ़ हो चुका होता है। तो वो रफ़ मीन्स स्कैटर्ड, यहाँ पर वही है। जो ब्रश था थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि उस पर किसी ने पेंट करके, जैसे ब्रश हो जाता है ना, उसकी जो ब्रिस्टल्स होती है वो अलग अलग हो जाती है, उस टाइप का ये ब्रश हो गया था उसका। और उसके पास एक पैलेट था। पैलेट में से आपने देखा होगा जो पेंटिंग करते हैं उनके पास एक पैलेट रहता है जिसमें अलग अलग कलर्स वो मिक्स कर सकते हैं या कलर्स को वो कैरी कर सकते हैं अलॉन्ग विद वाटर, उसमें वो पेंट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो उसने एक पैलेट देखा जो ग्रीन और येलो कलर्स उसमें मिक्स थे। 2 days later मिस्टर बेयरमैन डाइड इन अ हॉस्पिटल, और 2 दिन बाद मिस्टर बेयरमैन की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। द लास्ट रिवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, लेकिन जो लास्ट रिवी लीफ थी वो अभी तक उस वॉल पर ही थी। इट नेवर फ्लटर्ड, वो कभी भी मूव नहीं हुई। फ्लटर मीन्स इधर उधर मूव होना या मूव। व्हेन द विंड ब्लू, जब भी हवा चली वो कभी भी हिली नहीं, फड़फड़ाई नहीं। इट वॉज बेयरमैन्स मास्टर पीस, वो लीफ एक्चुअल में नहीं थी, वो बेयरमैन का मास्टर पीस था। He had painted it there that night when the last leaf had fallen. और वो उसने कब पेंट किया था? जब एक्चुअल में लास्ट लीफ गिर गई थी। और स्यू ने जैसा उसको बताया था कि जॉन्सी उस लास्ट लीफ के गिरने का वेट कर रही है, तो वो लास्ट लीफ गिरी, नो डाउट, ऑब्वियसली वो लास्ट लीफ गिरनी ही थी, तो गिरी। बट इसने क्या किया मिस्टर बेयरमैन ने, उन्होंने उसका पेंटिंग वहाँ बना दिया, जिससे जॉन्सी को ऐसा लगा कि वो पेंटिंग रियल है और वो रियल की लीफ है और ये उसका मास्टरपीस था। बट इसके कारण उनकी डेथ हो गई निमोनिया से। सो योर लास्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी एंड हाउ, किसने बचाई और कैसे बचाई जॉन्सी की लाइफ। So I hope today's video is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.